Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और here we are going back to our place जहाँ से हम belong करते हैं। तो भाई देखो ध्यान से। Number is 63 and these are my stops actually to eat something on a way and we are sitting here. But the thing was we have just one seat, 63 number, because of the only one seat has been confirmed. But you can't believe it. These seats are too good actually. You can see that. Yes. Everything is so good. But the thing was the seats are not allowed yet because it's little bit late. Okay. The timing was 7:45 something, but it's late. It's been 7:50 something. So let's just wait and watch how we will get our place, and then I will start again when I will show you the Patna station and other station as well. You can see in the thing I will show you one by one. So let's check tune. People are sitting here, people are waiting for the general line. I don't know for what, but they are waiting with their luggages and all. Maybe they seem like they are from general Bogey, they are waiting for it. And this is the Rajendra Nagar terminal. I don't know why this window is so dirty actually. But yeah, I'll show you this. And then we'll reach Patna Junction. I will show you that as well. Here is my car. Our journey has been started. So the train is started from here. You can't believe it. This is the Rajendra Nagar terminal and we are saying tata bye bye to them. And it was a good experience for me. That I came here. Visited all place. It was good. Yes, finally we have started our journey and this train is starting from here and I will show you the Patna junction for sure. But the thing is I can't open this window right now because in station it's so dramatic and they'll snatch our phones etc. I will close the thing for me from this side and I will show you the Patna junction for that. And you can see, I will show you one by हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन. Okay, ध्यान से लोगों को देखो भाई, लोगों को देखो, लोग अपने अपने ट्रेन्स के लिए वेट कर रहे हैं और इतनी देर से लोग बैठे होंगे ना जैसे हम बैठे हुए थे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का वेट करते हुए। भाई मेरे साथ हो गई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी किस चीज़ में आपको वो बता देती हूँ। भाई जो मुझे सीट नंबर अलॉट हुआ है ना 63, यहाँ पे हो गया एक प्रॉब्लम कि एक और पर्सन को यही सीट अलॉट हो गया फिर तो 63 जो नंबर है वो 2 लोगों को अलॉट हो गया है। सो बैड ब्रो, आई कांट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ कि एक ही सीट पे 2 इंसान की सकती ट्रेन पे। बट इट्स ओके। अभी हम लोग पटना सिटी में हैं, मतलब पटना सिटी नहीं, पटना जंक्शन लोग सिटी तो मैंने किसी से पूछा तो सिटी कह रहे सिटी बहुत आगे पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग पटना जंक्शन में हैं और यहीं पास में ना एक नाम हनुमान मंदिर सबने जो था जहाँ हम नहीं जा पाए। सो बैड एक्चुअली दैट वी डिडंट वेंट देयर एंड इट्स ओके। But bhai, it's so bad that my ticket is RAC. I thought it's RAC, but I will get a full seat and I will. It's okay, but I didn't got the full seat. I got just half of it. It's so bad actually. Why I just got half? But then I thought it's okay if I get half. It's literally better than to sit in general class. It's really okay. And you can see the बहुत रश है भाई। राजेंद्र नगर से ज़्यादा रश मुझे यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं ओपन करने वाली, मैं बाद में इसको ओपन करूँगी जब हम थोड़ा सा आगे पहुँच जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे की जगह, ठीक है। तो अब लोग स्टे ट्यून रहिए, बने रहिए। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं पटना जंक्शन से, ट्रेन हमारी चल रही है। तो द थिंग इज़ हेयर ना, तो ट्रेन हो रखी है लेट, इसको चलना था 8:13 समथिंग में कुछ, बट इट्स लिटरली लेट यार कि 8:30 से ज़्यादा हो गया, बट ये अब निकली है। भाई यू कैन बिलीव इट, बाहर का जो टेक्सचर है ना वो आप देखो, हाईवेज देखो,
हाईवे पे ऐसी लाइटिंग वगैरह मतलब अच्छे से लगा दी थी, ठीक है। स्टेशन पे कुछ मुझे लिटरली आई एम सेइंग ना, मुझे कुछ स्टेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। जैसे तो हर्षद मुझे गाजीपुर नगर वाला जो स्टेशन लगा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। और यहाँ मतलब गाड़ियाँ खड़ी है इस तरीके से, रेलवे चल रही है ऊपर की तरफ देखोगे तो लाइटिंग कितनी सुंदर लगी हुई है। ट्राई कलर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखिए में से। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है ना वो शायद दानापुर है, ठीक है। पर ये ट्रेन चल रही है लेट। लेट्स होप कि हमें ठीक से अच्छे से टाइम, अगर टाइमली पहुंचा देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मुझे लग नहीं रहा कि ट्रेन में टाइमली पहुंचा पाएगी। जस्ट लेट प्लस वेट व्हाट इज हैपनिंग टू अस, लेट्स सी। और इसके बाद का जो वीडियो है ना वो मैं रिकॉर्ड करूँगी आफ्टर दानापुर, ओके। व्हेन आई विल डू समथिंग एल्स, which stops do you like it or not, I don't know, I will show you that, okay, so let's, I will show you directly the things. अच्छा एक और पॉइंट है ना, जो मैं राजेंद्र नगर गई ना, तो वो वन मोर थिंग दैट आई एम वेरी फैसिनेटिंग अबाउट इट, वो कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा थे। आई हैव सीन सो मेनी कोचिंग सेंटर्स around that area. And even you can't believe it, I have seen one more thing and that was Nalanda समथिंग हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी या फिर कुछ था, मतलब वो ना नालंदा करके कुछ मे बी हॉस्पिटल या कॉलेज यूनिवर्सिटी था, आई डोंट नो, बट दैट वाज समथिंग देयर। एंड देयर वाज वन मोर थिंग वाज देयर एंड दैट वाज समथिंग पटना यूनिवर्सिटी करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो वहाँ पे थी। इसके अलावा ना वन मोर थिंग आई हैव राइट फ्रॉम देयर, दैट वाज 2 इंग्लिश कपल्स आज़ादी से पहले, फ्रीडम फाइटर्स के ज़माने से पहले ब्रो, उन्होंने ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए स्कूल ओपन किया था, वो अभी तक चल रहा है। दैट वाज रियली फैसिनेटिंग, दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग, दैट या कुछ लोग अच्छे होते हैं जो काम करते हैं, जो ऐसे हमारे देश महान है भाई। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा वो देख के कि हाँ वो भी वर्किंग है, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। दैट वाज ओके भाई। मतलब जस्ट मतलब ये कोई लोकल स्टेशन था, ठीक है भाई। मैं भाई हम लोग उतर चुके हैं, उतर नहीं क्या है, हम लोग पहुँच चुके थे, ट्रेन है वो स्टॉप हो चुकी है दानापुर में आके, ठीक है। ये चल नहीं रहा है भाई, ये 14 रुपये लिख के 20 रुपये चार्ज करते हैं हम लोगों से। और ये दानापुर है पूरा, जो नेक्स्ट स्टॉपेज है ना भाई वो भाई काफ़ी रात हो गई थी तो मैं सो गई और मैं अब सुबह आपको मिलूँगी। Let's continue our vlog. As I told you earlier, yesterday I told you that we were in Danapur, but right now we are in Idama something. और भाई मैं डायरेक्ट अभी उठी हूँ और भाई मैंने अपना फ़ोन कर लिया है चार्ज, बट भाई अभी तक मेरे साथ कोई स्पेशल थिंग हो नहीं पाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अब, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील हो रही है, क्योंकि ये ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। तभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि खिड़की के बाहर कोई भी सिनेरियो नहीं चल रहा है। अब मुझे घर जाके रेस्ट करना है और भाई क्या देखूँ, मालगाड़ी का डब्बा देखूँ, कुछ दिखे तभी तो मज़ा आएगा लाइफ में। भाई कुछ मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, जर्नी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है जब गाड़ी रुक जाती है। तो भाई बहुत देर बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो चुका है और चल पड़े हैं हम न्यू दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो भाई एक तो ना जब ना ऐसा होता है ना भाई, सफ़र थोड़ा डिले हो जाता है या फिर बार बार स्टॉपेज आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो भाई वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो अभी हमारा सफ़र हो चुका दोबारा से स्टार्ट और हम जा रहे हैं अपने शहर की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है। आई विल शो यू द आउटसाइड थिंग ना, ओके।
कोरोरा कोरारा पता नहीं क्या था, समथिंग लाइक दैट। तो मैं थोड़ा फ़ोन दूर रखूँगी भाई अपना। देखिए तो भाई हम थे करोरा करोरा, मतलब कोई स्टॉपेज था लेकिन इस ट्रेन के लिए नहीं था। मेरी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोवाइड भाई लुक एट द स्पीड ऑफ ट्रेन। हाँ भाई इसमें इतनी जल्दी कैचअप किया है ना लेट होने के बाद भी, कांट बिलीव इट ना। और इसकी स्पीड देखिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्पीड ज़्यादा ही थी। हमने हाथरस जंक्शन जो है उसने क्लियर कर लिया है। और हाथरस के बाद है और हमारे पास थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, शायद 150 या 200 किलोमीटर होगा यहाँ से न्यू दिल्ली। है हमारे बहुत सारे मिडल स्टॉपेज हैं जो आएंगी। कितने बढ़िया तरीके से लोड कर रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। और अगर मैं इंसिडेंट शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ ना, इट वॉज लाइक ना कि बहुत सारे अंदर ना स्टेशन पर से बैठे हुए थे हाथरस जंक्शन के पास। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि सडनली फादर टोल्ड मी ना कि हमें इन्हें कुछ खिलाना चाहिए। ये हमें नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग थे इन दिस ट्रेन, एवरीवन वाज हैविंग समथिंग एंड दे वर फीडिंग देम। दैट वाज द ग्रेटेस्ट एंड द finest idea I have ever seen. It was like, it is very nice. It shows that their heart is still filled with warm heartwarming. बंगलों को क्या है ना ब्रो, अब तो ऐसा जंगल घाट जो है नहीं कि वो ऐसा सफ़र कर सके, रह सके। अब वो इंसानों पे ही डिपेंडेंट है। वो इतने सारे बंदर मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर देखे। इससे पहले मैंने शायद मथुरा जंक्शन में देखा था मैंने उसे, जब हम वृंदावन गए थे। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, वो लोगों के चश्मे ले लेना, लोगों का फ़ोन छीन लेना, लोगों का पर्स छीन लेना, और वो वापस तभी करना जब वो उन्हें कुछ खाने को देना। तो मैंने ये देखा था। तो अभी क्या हुआ ना, अभी लोगों ने आधा किलो संतरा मैंने उन्हें दे दिया, समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा मैंने मतलब ज़्यादा पूछा नहीं है, थोड़ा सा मतलब मैं घर लेके जाऊँगी, मम्मा को दिखाऊँगी कि ये बिहार की चीज़ें हैं। वही अच्छा लगा। अभी हम लोगों ने हाथरस क्लियर कर लिया है। बात बनाना मना होता, मैं ग्रामीण बच्ची हूँ, ऐसा आई डोंट नो फॉर व्हाट। तो भाई देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं। उसके बाद ना मेरे अंदर की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो आई विल नॉट रिकॉर्ड फ्रॉम होम, आई विल डायरेक्टली रिकॉर्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। जब मैं उतर जाऊँगी उसके बाद थोड़ा सा क्लिक किया जाएगा न्यू दिल्ली के आसपास। और उसके बाद तो भाई अपना मेट्रो तो है ही, जिंदाबाद, है ना। तो नॉट इन न्यू दिल्ली, बट आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ ऑन द स्टेशन ऑफ गाज़ियाबाद समथिंग। Let's wait what is happening right now. I just don't know. The face is so blurry. I called my mother in the morning. I was so shining. She was like, "Oh, you are so shining right now." I was like, "No, I'm not shining like that." No, and I told her, "No, you are like." और इसके अलावा मेरे बालों का टेक्सचर देख सकती हो, बाल की सुहानी हवा चली रही है, धूप लगी रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे दिल को सदमा दे देती है। अचानक से हमारे हाथ बाहर निकले, अचानक से कोई ट्रेन अंदर से आ रही हो, कैसे फील होगा आपको, कैसे फील होती है अंदर से बहुत अचानक से। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं भाई गाज़ियाबाद करें, कुछ मिलेंगे अगर गाज़ियाबाद में मिल सके तो, ठीक है, नहीं तो वही फिर तो भाई न्यू दिल्ली तो फिक्स है ही। तो मिलते हैं आप लोग बाहर का पिक्चर देखो भाई, बाहर का सीन
तो मस्त है यार नहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं मेहरावल। ठीक है भाई। तो भाई अभी हमें ना तकरीबन 150 किलोमीटर्स अभी हमें और पार करना है। ये बहुत पीछे चल रहे हैं हमसे ज़्यादा तेज, तो जो मालगाड़ी है ना वो चल रही है लिटरली ब्रो, ट्रस्ट मी, हमसे ज़्यादा तेज वो चल रही थी। जनरल मेरे थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में। भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी रखते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, सफाई नहीं है। बट दैट थिंग इज ना भाई कि 17 घंटे में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कल रात को 7:45 यानी कि 8 PM पे जो गाड़ी थी वो छूट गई थी वहाँ से, राजेंद्र नगर से। आप खुद समझ सकते हो कि 8 पे छूटने के बाद लिटरली आज 8 बजे 12 घंटे हो गए, और अभी ये बोल रहे हैं हमें कि हमें 1 बज के समथिंग पे में उतारेंगे। तो आप समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा वर्क है, ऊपर से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो गाड़ी थी संपूर्ण क्रांति के लिए कुछ थी भाई, वो पहुँच चुकी है दिल्ली, ठीक है। और इसके अलावा भी 3-4 जो गाड़ियाँ थी वो पहुँच चुकी है, वो हम ही वेट कर रही हैं। तो और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सक्यूजेज या रीज़न्स दूँ, मुझे गाड़ी क्यों पर्सनली पसंद आई, तो पसंद करने के बहुत सारे रीज़न्स है भाई। पहला फर्स्ट पॉइंट है भाई यहाँ पे सेफ्टी कह लो, सिक्योरिटी कह लो, या फिर क्लीननेस कह लो। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सब ओके था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जनरल के डिब्बे बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग योर टिकट्स यू कैन कम एंड जॉइन द जनरल के पास। there are 11 coaches of generals, okay, and only 8 selected coaches are from sleepers। और इसके अलावा इसमें कोई थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC नथिंग। हाँ, इसमें ना एक और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि भाई अगर आप पहले आ जाते हैं तो भाई आपको जनरल के डिब्बे में आराम से बैठने को मिलेगा। स्लीपर में तो भाई जिनकी टिकट्स होती है वही लोग आ सकते हैं। हाँ, मैंने इस गाड़ी में ये देखा कि इस गाड़ी में एक भी ऐसा फालतू जगह नहीं था। जो जिनके पास टिकट्स थी देवर है, और सीट बाई सीट लोग बैठे हुए थे, सीट बाई सीट, आप समझ सकते हो। सीट बाई सीट का मतलब क्या है, कोई मतलब ऐसा कोई फालतू नहीं था। ये देखो भाई गाड़ी चल रही है रफ्तार में अपनी, हमें कुछ नहीं काम है, पेट पूजा हमने कर लिया है, इसके अलावा नहीं क्या गया हमारा। और बस कुछ नहीं रह गया, एक सफ़र इंजॉय करो, घर पहुँच जाओ मुँह उठा के। लिटरली भाई मुझे ना पिंपल हो रहे हैं कुछ समथिंग करके, और इसमें शायद मैंने अपने हाथ से ही खोल दिया पहले। इसके अलावा मुझे यहाँ भी 2 दिख रहे हैं। आई डोंट नो, बिहार का पानी शायद मुझे सूट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बताने वाली थी आपको कि आप लोग भी अगर आप लोग बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, राजेंद्र नगर जा रहे हैं, तो यू कैन चूज़ द होटल बहुत ही चीप प्राइस पे 800 या 600 पे आपको वैसे वो 1000 बोलेंगे, पर आप 800-600 तक भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस पर तक मिल जाता है। अभी कहना कि दूसरा कोई चांस नहीं है, कहीं आउटफुल लेना ही पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कोई दूसरा चांस आपके पास है नहीं ना, जो आप बोले हो रहे कि भाई ठीक है आपने दे दो, हम मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। नहीं, चाय सब मिल जाती है भाई, चाय मांगो चाय हाथ में डाल। तो मुझे ऐसा दूसरी चाय मैं नहीं पी सकती, बिकॉज समझिए आपको जेन्युइन रीज़न है मेरी भी। इट्स ओके, गाड़ी चल रही है अपनी रफ्तार में चल रही है। लटे निकल रहे हो तो निकल नहीं पाते, ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ अपना रेस्ट पीरियड चल रहा है, शाम से भाई बिजी वर्क ओवरलोड होने वाला है मेरे माथा। अभी ना बहुत सारे बिल्कुल से हार करेगा। देखो जो मैन हु सिटिंग विद मी, नॉट विद मी बट इन माय सीट, वो लिटरली इज ड्रंक एंड आई एम लिटरली नॉट फीलिंग सेफ नो। आई डोंट नो।
तो जो ये आदमी था ना उसने पी रखी थी और ये पी के बिल्कुल धुत था और फ़ोन पे गालियाँ बक रहा कि सीट था। नंबर 64 ही नहीं तो सिट अप ना। पी रखा है तो ऊपर आके सो जाओ यार, क्यों दूसरे को ज़िंदगी खराब करने में तुले पड़े हो। इस इंसिडेंट के बाद भाई मैंने बोलना ही बंद कर दिया और मैं अपने आप को रिकॉर्ड करना जारी रखा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे साथ अगर कोई नहीं है तो मैं खुद के तो साथ हूँ। भाई इस क्लिप में हम गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रेन की इतनी गंदी आवाज़ और इतनी तीखी आवाज़ से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। और भाई ये है हमारी लास्ट वीडियो क्लिप भाई, जिसमें हम न्यू दिल्ली पहुंचने वाले थे। और भाई अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब अपने आप को रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि 18 घंटे का लंबा सफ़र तय करने के बाद मेरे फ़ोन ने और मैंने दोनों ने टाटा बाय बाय कर दिया था। तो आपसे भी अब अलविदा लेते हैं, टाटा बाय बाय।